So you feel like you've messed up your 11th grade? Maybe you started late, or maybe you just didn't take JEE prep that seriously. Some of you might have started with full josh and then lost momentum. Or maybe it was the classic kal se padhai pakka. And well, kal never really came. Now 12th is knocking on your door and you're sitting there thinking, can I still crack JEE 2026? But before we get into the hows and whats, let's be real for a second. There are already tons of videos on this topic. Teachers, mentors, seniors, everyone has something to say. Some of them are actually really good. But the problem? You'll have to watch 10 different videos to get a complete picture because none of them are perfect or cover everything. So what we're doing in this video is taking all those suggestions, all that advice floating around, filtering out the noise, and giving you a clear roadmap. No confusion, no fluff, just clarity. Alright, now coming back to the big question again. Can you still crack JEE 2026? क्या IIT JEE में पॉसिबल है? तो आंसर इज यस, 100% पॉसिबल है, मैंने पहले ही बोला. In this video, we're going to talk about how you can bounce back, cover all the lost ground, and still make that IIT dream happen, even if you're starting fresh. So, let's go. ट्रस्ट में सब कुछ हो जाएगा. डिमोटिवेटेड फील करने की कोई जरूरत नहीं. मतलब लिटरली भाई मार्केट में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि ड्रॉप लेकर भी 3 डिजिट के रैंक ले आते हैं. ऐसे बच्चे जिनका 11 12 दोनों वेस्ट हुआ था, अगर वो कर सकते तो तुम तो डेफिनेटली कर सकते हो. The key is simple. Don't let guilt or regret eat you up. Accept it, own it, and now move forward. बहुत सिंपल है, चुपचाप पढ़ाई करो. नहीं ट्रस्ट होता कि सर ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, कोई नहीं, फिर भी पढ़ ले भाई, फिर भी पढ़ ले. एक्सपीरियंस कुछ तो थोड़ा सा बड़ा होना, थोड़ा बड़ा भाई मान के पढ़ ले. प्रो वॉज वंस अ बिगिनर. कहने का मतलब अगर आपको ये चीज का डाउट है, ये मैं स्टेटमेंट इसलिए लेके आया क्योंकि कई बच्चों को ये डाउट है कि हम कैसे कर पाएंगे. सबसे पहली सीढ़ी संकल्प की चढ़नी पड़ेगी. किसकी चढ़नी पड़ेगी? संकल्प की. आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है. Feeling motivated enough? Let's move on to something really interesting, which will make it a little easy to believe that you still have time and you can crack JEE 2026. कवर करता है 60 to 70% ऑफ द पेपर, या फिर आप बोल सकते हो सिर्फ 60% प्लस. And you just need to score around 60% marks to score more than 95 percentile to clear NIT as well as JEE advanced cutoff. Alright, now listen to this. Let's say you go all in on your class 12 prep and manage to score really well, like around 70% marks just from the 12 syllabus. That alone gets you to about 42% overall in JEE. Not bad, right? Now, let's say alongside that, you manage to revise and patch up your 11th topics, not fully, not perfectly, but enough to score around 45% from the 11th portion. Add that up, and boom, you're sitting at around 60% overall, and that's more than enough to get into a good NIT and a try for JEE Advanced. Sounds doable now, doesn't it? Now, another good thing is... बट जब आप क्लास 12th में आओगे तो ये सारे टॉपिक्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट टॉपिक्स. So like we discussed earlier, most class 12 topics are independent of 11th. That's good news, right? But you'll still need to cover a few important 11th topics to make your 12th journey smoother. Without those basics, some 12th concepts might feel like a headache. So here's a quick list of key chapters and concepts from 11th that you should focus on. और हाँ, पूरा डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है. बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, क्लैरिटी ले आओ, बस दैट्स इनफ फॉर नाउ. ज्यादा डिटेल में जाने का प्रेशर मत लो. स्मार्टली पढ़ना है, नॉट ब्लाइंडली. लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स फर्स्ट. अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो तुमको मैकेनिक्स के बेसिक्स देखने पड़ेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस में तुम्हें फॉर्मूला लग सकता है. अब मैकेनिक्स खुद में ही एक बहुत बड़ा सेगमेंट है एंड उसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है. तो सिर्फ 12th के लिए बेसिक्स एंड फॉर्मूला कवर कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा. आता है अपना वेक्टर्स. तो वेक्टर्स तो क्या ही है यार, सारी चीज ही वेक्टर है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, सब कुछ ही तो वेक्टर है. तो वेक्टर तो तुम्हें आना ही चाहिए. एंड वेक्टर्स तुम्हारा मैथ में भी आता है, तो तुम्हारा वहां से भी बढ़िया तैयार हो जाएगा. सर्कुलर मोशन का भी तुम्हें आइडिया होना चाहिए. चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में फेंक दिया, कितना सर्कल बनेगा, कितनी देर तक उसमें वो घूम के आएगा. ये सब सवाल तो आते ही रहते हैं. बात करें एनएलएम की, तो तुम्हें बेसिक फोर्स इक्वेशंस एफबीडी बनाना, ये तो देखो आना ही चाहिए. पुली का यूज 12th में नहीं होता, पर तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए. तो वर्क डन निकालना आना चाहिए और वर्क एनी थ्योरम अप्लाई करना आना चाहिए. सेंटर ऑफ मास इतना बड़ा चैप्टर है, अरे भैया सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन करना सीख लो, जो इनिशियल कुछ लेक्चर में होते हैं. रोटेशन अरे सर, अरे भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख लो और बेसिक टॉर्क लगाना सीख लो. वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट में भी कुछ जगह काम आएगा. बेसिक टॉर्क निकालना और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बन जानी लाइफ. तो यार पूरे 11th के सिलेबस से 10 से 20% सिलेबस से तुम मस्त एकदम क्लास 12 की स्टार्ट कर सकते हो, घबराना नहीं. Many teachers will suggest many more chapters based on their analysis, but don't get confused. These are only chapters which you must do. Every other topics are just optional. Now for chemistry.
बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है ना, तो टीचर्स इसी से शुरू करते हैं, तो रिवीजन तो कर ही लेना इस चैप्टर का। इसके अलावा ऑफ कोर्स अगर तुमको मोल कॉन्सेप्ट आता होगा तो तुम्हारे बेसिक्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे, तुमको पता होगा क्या हो रहा है किसी रिएक्शन में। फिजिक्स में वापस पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में अगर तुमने 11th में नहीं भी पढ़ा हो ना, तो टेंशन नहीं लेने का, 12th में वापस फिजिक्स में आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में आइडियल गैस इक्वेशन कर लेना। थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा कमांड में ना 12th में काम आएगा वो। आयनिक इक्विलिब्रियम में कैलकुलेशन ऑफ पीएच, सॉल्युबिलिटी बेसिक्स फॉर्मूला ये काम आएगा। रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस आनी चाहिए भैया, वो 12th में काम आएगी, तो यार बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब हाँ, दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं भाई साहब, इनको मैं स्टार मार करूंगा, ये 12th में काफी काम आते हैं, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। Now for maths. अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपीजीपी, लॉग्स एंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तुमको आना चाहिए। इतना कर लो तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में 12th में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कंपाउंड एंगल में बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड ग्राफ्स आने चाहिए, और कोऑर्डिनेट, अच्छा पी एंड सी, सॉरी ये खतरनाक होता है, अरे यार इसके बेसिक्स आने चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में काम आएगा। प्रोबेबिलिटी के पहले जनरली काम नहीं आता, तो जब तुम्हारा 12th में प्रोबेबिलिटी हो उसके पहले इसको निपटा लेना, ठीक है। और बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इन सब के बेसिक्स तुम्हारे काम आने वाले हैं। Now, how to cover these 11th topics which are important for 12th? There are multiple ways to do that, but we would recommend this method suggested by Ashish Arora sir. 24 घंटे में कम से कम 15 से 16 घंटे लगातार एट ए स्ट्रेच तीनों सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, जितना चाहे छूट गया वो चीजें, उन सारी चीजों को पेसअप करके, चाहे कोचिंग में है, ऑनलाइन सिस्टम में, किसी भी सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं, वहां पे जो टॉपिक चल रहा है उससे एक टॉपिक आगे तक की चीजें हम स्क्रीन करते हुए दिमाग में याद करते चले जाएंगे, और वो शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला लिस्ट दिमाग में बैठाते जाएं। However, if you are not able to do that, you can start the 11th syllabus parallelly to the 12th. Dedicate 1 hour daily or 3 to 5 hours on holidays to cover those chapters. बस एक चीज ध्यान में रखो, हर दिन 1 घंटा, और अगर छुट्टी है तो 3 से 5 घंटा तुमको देना है सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग क्लियर करने में। अगर तुमने ये अपने रूटीन का पार्ट बना दिया, तुम्हारा आधा टेंशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। Did you think you only need to study those few 11th chapters we talked about earlier? Nah, those were just the must-know ones, the ones that will help you survive and understand class 12 topics better. But if you're aiming to score well in JEE Main and Advanced, you'll need to go beyond that. To hit that sweet 60% overall, you'll still need to squeeze out a solid 45% from the 11th syllabus too. So yes, eventually, you'll have to circle back and cover the other chapters from 11th. Not everything at once, don't worry, but it has to be part of the plan. Now here's something super helpful. We've got this golden graph that'll help you figure out which chapters to focus on first, based on how important they are and how much effort they need. Pretty cool, right? Work smart, not just hard. गोल्डन ग्राफ है, मतलब ये एक बंदे को पूरी एक क्लियरिटी दे सकता है, एक पूरी हर एक तरह से तुम ये मान सकते हो गॉड है ये चीज। ग्राफ के एक्स एक्सेस पे है वेटेज, वेटेज मतलब ये जो चैप्टर्स हैं ये लो वेटेज वाले हैं, ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये हाई वेटेज वाले हैं, ठीक है, इधर लो है इधर हाई है। ऐसे अगर मैं वाई एक्सेस की बात करूं तो इधर है तुम्हारा इनपुट, इनपुट मतलब कितनी मेहनत लगेगी उस चैप्टर को करने में, तो ये जो है ये सारे चैप्टर्स लो वेटेज वाले हैं, मतलब लो इनपुट वाले हैं, मतलब कि कम मेहनत लगेगी, और ये वाले चैप्टर्स जो हैं ये सारे हाई इनपुट वाले हैं, मतलब इनमें ज्यादा मेहनत लगेगी। You can start with high weightage chapters in physics like string waves, sound waves, KTG, thermodynamics, and gravitation. These give you great return for your effort. Same goes for maths and chemistry. There are certain chapters where the effort is relatively low, but the marks you can get are solid. And when you combine these with those important prerequisite chapters we talked about earlier, you're already in a position to score around 45% from the 11th syllabus in JEE Main. Not bad at all, right? And now, how to cover these other important chapters of class 11th. As suggested before, dedicate 1 hour daily or 5 to 6 hours weekly to cover those chapters. Use weekends and holidays to catch up. But first, create a schedule or planner of 11th chapters. आपके पास फ्री टाइम हो, दैट इज सैटरडे संडे, सैटरडे संडे के अलावा भी आपके पास कोई छुट्टी आती है। How many hours to study? In general, it is suggested that you allocate 14 hours daily for studying, balancing lectures and self-study. और 14 आवर्स तो रोज आना, कुछ भी करना है, 40 आना पड़ रहा है। But we do not suggest this fixed approach. Better, set a weekly target of 80 hours of study with flexibility to adjust daily study hours. और 80 घंटे का कमिटमेंट किया है। Common mistakes and blunders and how to avoid them. Don't repeat the same mistakes. आपकी टॉप 3 मिस्टेक, सिर्फ 3 की बात कर रहा हूं, गलतियां हो सकता है आपने 10 करी हो, पर 3 जो सबसे ज्यादा आपको नुकसान करी है उसको लिखो
और उनको अगले 21 दिन तक नहीं करना। Address backlogs to prevent new ones from developing. You have to give extra stress on not accumulating any backlogs in class 12th. जो आपको एक सबसे बड़ी गलती रिपीट नहीं करनी है, वो बेटा ध्यान से सुन लेना, नो मोर बैकलॉग। सो बैकलॉग हमेशा नए बैकलॉग को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है। Don't aim to complete all of 11th before starting 12th. As suggested before, first cover the 11th chapters which are important for 12th and then cover other 11th chapters as per their weightage. तो यार अब ये गलती नहीं करेंगे अपन, है ना, कि भाई पूरी 11th पहले पढ़ेंगे फिर 12th स्टार्ट करेंगे। और ये Don't solve a chapter from multiple resources, stick to one and solve it completely. ये एक चैप्टर की 5-5 जगह से थ्योरी पढ़ ली। मैं देखता हूँ इतने बच्चे इस चक्कर में गड़बड़ करते हैं। एक चैप्टर लेकर बैठ गए, 5-6 अलग अलग टीचर्स सवाल नहीं कर रहे, पीवाईक्यूज नहीं कर रहे, टेस्ट नहीं दे रहे, एंड में पता चलता है वो चैप्टर पूरा का पूरा उड़ गया। Do not get demotivated if you are unable to solve problems in the first attempt. दूसरी चीज, कभी भी शीट का कोई सवाल नहीं होता तो उससे डिमोटिवेट मत हो कि भैया मेरे से ये शीट का सवाल नहीं हुआ, मेरे से डीपीपी का सवाल नहीं हुआ। क्वेश्चन गलत होते हैं, डिमोटिवेशन नहीं, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टडी बेटा। जो भी क्वेश्चन गलत होता है उससे आपको सीखना है, एग्जाम का भी, टेस्ट का भी, डीपीपी का भी बेटा। Avoid distractions like relationships, excessive social media and time-wasting activities. जो खुद का ना हो सका वो तुम्हारा क्या हो पाएगा? अपनी पढ़ाई छोड़ जो तुम्हारे पीछे आएगा, अपनी पढ़ाई छोड़ जो तुम्हारे पीछे आएगा, वो खुद का ना हो सका तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? और याद रखना 11th-12th में जो अट्रैक्शन होता है, हम किसी के पीछे भागते हैं, कोई हमें पसंद आता है, हम अपना टाइम खराब करते हैं और 1 साल बाद वो हमारे जीवन में नहीं रहता, नहीं रहती, और हमारे पास 12th में जो कर दिखाने का मौका था वो भी नहीं रहता। तो फिर सर क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन कहीं और हो जाता है। All right, champs, we've covered it all. The must-do 11th chapters, the smart picks for scoring big, and the classic mistakes you gotta run away from like your life depends on it. अब एक बात ध्यान से सुनो. 11th might have been messy, but 12th is yours to conquer. You're not stuck because of what you didn't do. You're only stuck if you don't start now. Believe me, if you stick to the plan, hustle hard, and stay a little madly focused, you're gonna shock everyone, even yourself. This is your comeback year. Make it epic. Make it the story you'll be proud to tell. So stop worrying, stop doubting, and start moving. Now go on, open your books, start grinding, and make IIT yours. Let's freaking go. If this video fired you up even a little bit, smash that like button, share it with your buddies who are still crying over 11th, and hit subscribe because we're gonna keep bringing you straight up strategies. No bakwas.